लद्दाख के ट्राइबल हाउस का एक टूर दूंगा, ठीक है। ट्राइबल हाउस क्यों कह रहा हूँ, ये अगर मिट्टी का बना है, हाँ, ये जो दीवारें हैं ये बिल्कुल मिट्टी के जैसे आपके वहाँ बनते होंगे, कूट कूट के मिट्टी से बना है। ये है कि जो पुराने में अच्छाई है उसको रखें और नया मॉडर्न हो तो मॉडर्न में जो अच्छाई है उसको लें, है ना। तो दोनों का एक मिश्रण भी तो बन सकता है, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। जो लोग फेल हुए हैं जी उन्हीं को एडमिशन दिया जाएगा या उनकी प्रतिशत जो है ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी और फिर उनके लिए ये स्कूल अलग। अगर आपको 95% मार्क्स मिले हैं तो ये जरूरी नहीं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन यदि आप फेल हुए हैं 4-5 दफे तो वो एक अच्छा क्राइटेरिया बन जाता है आपकी। नहीं बहुत अच्छी बात है, देखिए बहुत खूब। मेरे प्यारे छात्रों नमस्ते। BTC চুক্তি হোৱাৰ পিছতহে তাৰ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাক গঢ় লৈ উঠিছে। আজি সেই শিক্ষানুষ্ঠানবিলাক আমি দেখা পাইছোঁ বহুত শিক্ষানুষ্ঠানে এতিয়ালৈকে ভেঞ্চাৰ হিচাপে চলি আছে। लगभग 9 साल की उम्र तक मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ा, कोई ये जो टॉर्चर होता है। मगर ये बात नहीं कि मैं कुछ सीख नहीं पाया, मैं बहुत कुछ सीख पाया और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं अपनी माँ के साथ अपनी ही भाषा में दुनिया के बारे में सीख पाया। और ये लगभग 9 साल की उम्र तक मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ा, कोई ये जो टॉर्चर होता है। मगर ये बात नहीं कि मैं कुछ सीख नहीं पाया, मैं बहुत कुछ सीख पाया और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं अपनी माँ के साथ अपनी ही भाषा में दुनिया के बारे में सीख पाया। और ये आजकल बहुत दुर्लभ हो गया है कि अपनी मातृभाषा में सीखने का अवसर मिले। हम बच्चों पर उर्दू अंग्रेज़ी थोप थोप के उनका बुरा हाल कर देते हैं। तो इस तरह से मुझे मेरी माँ ने अपनी भाषा में लिखना पढ़ना सिखाया और बहुत ही सूझबूझ के साथ। वो बहुत इनोवेटिव थी। इतना दूर का इलाका था कि आपको उस समय पे माचिस की तीलियाँ अगर ख़त्म हो जाए तो न मिल पाए 2 दिन तक, ऐसा तो अग्नि कैसे जलाते थे वो? जी, मुझे एक जो जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया, तो वो क्या करती थी, जब बाजार से जाकर मतलब बाजार पास नहीं था, 1 दिन का रास्ता था, तो 1 दिन उस समय 1 दिन लगता था बाजार जाने में? जी, वहाँ कोई पास में बाजार नहीं थी तो ले जाना पड़ता था इस छोटे से गांव से। तो जब वो लाती थी तो कभी खत्म ना हो जाए इसलिए एक डब्बा वो अलमारियों में छिड़क देती थी, ताकि जब आखिरी डब्बा हो तो उन्हें मेहनत करनी पड़े एक एक तीली के लिए और तब तक दूसरा डब्बा आ जाए। तो ऐसे इनोवेटिव तरीकों से वो घर चलाती थी। ভাল নজৰ ৰাখিম। ইয়াৰ পিছত যি কৰিব লাগে আমি আমাৰ দলৰ তৰফৰ পৰা আমি এনি কাইণ্ড অফ এনি এক্সটেণ্ট জাষ্টিছৰ কাৰণে, ন্যায়ৰ কাৰণে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যাতে ভাল হয় ইয়াৰ কাৰণে আমি কাম কৰিম। এতিয়া আমাৰ ডাঙৰ এটা সমস্যাটো হ'ল যে ওদালগুৰি ডাইট, বাক্সা ডাইট আৰু আমাৰ চিৰাং ডাইট, 3টা ডাইটত এতিয়ালৈকে আমাৰ DLED ক্লাছ হোৱাই নাই। এতিয়া টিচাৰ হ'বলৈ হ'লে টেট পাছ হ'বই লাগিব, DLED পাছ হ'বই লাগিব। গতিকে এইখিনি DLED পঢ়িবৰ কাৰণে ডাইটত আজিলৈকে যদি টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া নহয়, ডাইটখন বনাই দিয়াৰ পাছতো আজিলৈকে সেইটো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে পঢ়িবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি যদি দিয়া নহয়, সেইটোতো আচৰিত কথা হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয়। গতিকে আজিৰ এই য'ত নেকি এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন, ৰিকুইজিট কোৱালিফিকেশ্যন DLED আমাৰ LP UPৰ কাৰণে, এই DLEDৰ ব্যৱস্থা পঢ়িবৰ কাৰণে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইখিনি সুবিধা যাতে পায়, চৰকাৰৰ পৰা এই 3টা ডাইটত সোনকালে এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ ব্যৱস্থা, লেকচাৰাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ, ইনষ্ট্ৰাক্টৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। মই এইখিনিত দাবী জনাইছোঁ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আমাৰ বিৰোধী পক্ষই যি কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আনিছে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি জাষ্ট কেইষাৰমান কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যোৱা দিনবিলাকত আমাৰ শিক্ষা বিভাগত আমূল পৰিৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি তেওঁলোকে ব্যৱস্থা লৈছে বিভাগে, সেইটো নিশ্চয় প্ৰশংসনীয়। আৰু যদি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি যদি গুণগত শিক্ষা দিব লাগে, আন্তঃগাঁথনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো দিশত ভাল হ'ব লাগিব, আমি কাম কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষা বিভাগত যথেষ্ট পুঁজি আমি দিব লাগিব, ইয়াতকৈ বেছি দিব লাগে বুলি আজি হাউজে সিদ্ধান্তহে ল'ব লাগে। উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, যে বিশেষভাৱে আজি আমি দেখিছোঁ আমাৰ
শিক্ষানুষ্ঠানবিলাক বিশেষভাৱে আন্তৰিক গাঁথনি নিৰ্মাণ কৰাবিলাক আমি দেখা পাইছোঁ যথেষ্ট সুন্দৰ হৈছে য'ত এটা শিক্ষা দিয়াৰ এটা পৰিৱেশ আমি দেখা পাইছোঁ এটা সময় আছিল মই 2001 চনৰ পৰা মই ওদালগুৰি বিধানসভা সমষ্টিত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলোঁ আৰু সেই সময়ত আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকৰ অৱস্থা মানে শিক্ষা লোৱাৰ পৰিৱেশ একো নাছিল বা শিক্ষা দিয়াৰ পৰিৱেশ নাছিল কিন্তু আজিকালি যথেষ্ট ভাল হৈ গ'ল ভাল পৰিৱেশ হৈ গ'ল আৰু আমি বেছি ভাল কৰিব লাগিব সেইকাৰণে মই অনুৰোধ কৰিম আমাৰ শিক্ষা বিভাগক যে যিমানখিনি আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া বৰ্তমান আছে সেইবিলাক আমি আৰু কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে যিমান পুঁজি লাগে মইতো অনুৰোধ কৰিম সেই পুঁজি দিব লাগে কাৰণ এটা ভাল পৰিৱেশ আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক দিবই লাগিব গুণগত শিক্ষা দিবই লাগিব কাৰণ তেওঁলোকেই আমাৰ ভৱিষ্যত এই উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমি বিশেষভাৱে BTC অঞ্চলটো 2003 চনত যেতিয়া BTC একৰ্ড হ'ল সেই BTC একৰ্ড হোৱাৰ পিছৰ পৰাহে আমাৰ তাত শিক্ষাৰ যি ব্যৱস্থা অলপ লাহে লাহে ভাল হোৱাটো আমি দেখা পাইছোঁ 2003 চনৰ আগত তাৰ কোনো শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাবিলাক ভাল নাছিল আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহবিলাক মানে শিক্ষাৰ যিটো মূল্য সেইটো বেছি বুজি পোৱা নাছিল গতিকে BTC চুক্তি হোৱাৰ পিছতহে তাত শিক্ষানুষ্ঠানবিলাক গঢ় লৈ উঠিছে আজি সেই শিক্ষানুষ্ঠানবিলাক আমি দেখা পাইছোঁ বহুত শিক্ষানুষ্ঠানে এতিয়ালৈকে ভেঞ্চাৰ হিচাপে চলি আছে গতিকে আমি আমাৰ শিক্ষা বিভাগক মই অনুৰোধ কৰিম অন্ততঃ সেই ভেঞ্চাৰ স্কুলবিলাক প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰাৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ইতিমধ্যে আমাৰ BTC চৰকাৰৰ পৰা এটা আইন পাছ কৰি ইতিমধ্যে আমি পঠাইছোঁ আৰু খুব সোনকালে সেইটো পাছ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ সোনকালে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে আমাৰ মহামান্য ৰাজ্যপালৰ এপ্ৰুভেল লৈ সেইটো পাছ কৰি দিব সেইটো আমি আশা কৰিছোঁ আৰু বিশেষভাৱে আমি আমাৰ জিলাবিলাকত আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ যিবিলাক হাইস্কুল আছে তাত ছায়েন্স টিচাৰ নাই বিশেষভাৱে মই ওদালগুৰি জিলাৰ কথাটো কৈছোঁ তাই প্ৰায়বিলাক শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকত বিজ্ঞান শিক্ষক নাই গতিকে সেই বিজ্ঞান শিক্ষকবিলাক আমাক দিব লাগে ডায়েট চেণ্টাৰ হৈছে কিন্তু তাত DLED শিক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো নাই যাৰ কাৰণে মোৰ ওদালগুৰিৰ যিসকলে শিক্ষকতা কৰিব বিচাৰে টেট পৰীক্ষা দিব বিচাৰে তেওঁলোকে মঙলদৈত আহিবলগীয়া হয় আজিকালি 2 বছৰীয়া কোৰ্চ সাধাৰণ দুখীয়া মানুহ সেই DLED পঢ়িবৰ কাৰণে বাহিৰত থাকি পঢ়াটো কিমান সম্ভৱ হ'ব সেইটো যিজন ব্যক্তিয়ে কৰিব সেয়েহে অনুভৱ কৰিব পাৰিব গতিকে আমাৰ ওদালগুৰিত থকা যিটো ডায়েট চেণ্টাৰ তাত DLED শিক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু এটা কথা আমি তাত দেখিছোঁ তাত যিহেতু বেছিভাগ মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ বড়ো মিডিয়ামত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী হয় তাত মানে বড়ো শিক্ষা দিয়াৰ তাৰ ব্যৱস্থাটো থাকিব লাগে সেই ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে আৰু আমাৰ বাগান চাহ বাগিচাবিলাকত মডেল শিক্ষানুষ্ঠান তাত বনোৱা হৈছে খুব সুন্দৰ বিল্ডিং বনাইছে কিন্তু তাত সেইখন বিদ্যালয়ৰ কাৰণে কোনো পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰা হোৱা নাই গতিকে তাতো নতুন পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিম কাৰণ আমি দেখিছোঁ যি এক্সিষ্টিং যি শিক্ষানুষ্ঠান তাৰ পৰা শিক্ষক তাত আনিছে গতিকে দুইটা স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ যথেষ্ট ক্ষতি হোৱাটো আমি দেখা পাইছোঁ গতিকে সেই স্কুলবিলাকত মানে নতুন শিক্ষক নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰাৰ ব্যৱস্থা এইটো কৰিব লাগে বুলি মোৰ তৰফৰ পৰা মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ এমেলগেমেশ্যনৰ কথা আমাৰ বিশেষকৈ ট্ৰাইবেল এৰিয়াবিলাকত শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকত যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰী কম কিন্তু সেই শিক্ষানুষ্ঠানবিলাক যদি আমি এমেলগেমেট যদি কৰোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক 2-3 কিলোমিটাৰ দূৰত গৈ পেলাই শিক্ষা লোৱাটো কেতিয়াও মানে নকৰিব তো সেইকাৰণে বিশেষভাৱে আমাৰ BTC অঞ্চলত আমাৰ এটা কনচিডাৰটো কৰিব লাগে যদিও 1:30 হয় আমাৰ ট্ৰাইবেল অঞ্চলবিলাকত সেইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় গতিকে আমাক স্পেচিয়েল এটা কনচিডাৰটো কৰিব লাগে এমেলগেমেশ্যন যাতে নকৰে তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু বিশেষভাৱে আমাৰ বড়ো মিডিয়াম স্কুলবিলাকত আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাক আৰু বেছি আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে সেইখিনিও কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিম যিহেতু আমাৰ বাকী কথাবিলাক মোৰ সতীৰ্থ বন্ধুসকলে কৈছে মই দীঘলীয়া নকম এইখিনি বক্তব্যৰে আমাৰ বিৰোধী পক্ষৰ নেতাসকলে যি কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আনিছে সেইটো উঠাই ল'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ नमस्कार साथियों मैं अभी भी ज़िंदा ही हूँ ये 25वां दिन है मेरे अनशन का 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियाँ कम होने लगी हैं मगर ठीक ही हूँ कल मैं रात को यहाँ गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया हूँ सफदरजंग से और मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियाँ खाते हुए वापस कोई हमला ना करते हुए हालांकि बहुत
उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए लाए जाने पर भी आपने सब्र से काम लिया। मैं बहुत ही मेरा दिल पिघल गया इससे, और क्योंकि उन पर बहुत ही बर्बरता से हमले हो रहे थे, इसलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया था। अब भी मेरे पास बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ, जिसमें शासक दल के मंत्री भी आए और सांसद लगभग 65 के हस्ताक्षर और यहाँ आकर अपील कर रहे हैं कि मैं अनशन तोड़ूं और वापस देश सेवा में लग जाऊं। मैं खुद भी ऐसा ही करना चाहता हूं। मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़रूरी है, मगर मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात, उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद। सोनम वांगचुक। सज्जनों, मुझे बड़ा गर्व हो रहा है आपसे और आपका परिचय देते हुए। सोनम वांगचुक जी ये लद्दाख से हैं। सबसे पहले सोनम जी हम जानना चाहेंगे कि आपका ये जो नाम है इसका मतलब क्या है? हाँ, नाम में क्या रखा है वैसे तो कहते हैं, फिर भी मेरा नाम लद्दाखी या तिब्बती भाषा में सोनम का अर्थ है भाग्य या भाग्यशाली। भाग्यशाली, अच्छा। और वांगचुक शक्ति, और वांगचुक शिव के लिए भी प्रयोग किया जाता है। वांगचुक शिव के लिए भी? जी जी। शक्तिशाली शिव। जी, शिव ऐसा शक्ति। बिल्कुल, बहुत खूब। मेरे प्यारे छात्रों, नमस्ते। एक दो दिन पहले आपके प्रदर्शन की तस्वीरें देखकर मन व्याकुल भी हुआ और दुखी भी। किसी भी छात्र को अपनी बात कहने के लिए ऐसी परिस्थितियों से नहीं गुजरना चाहिए। मैं भी कभी छात्र था। मैंने भी सपने देखे, सवाल पूछे, व्यवस्था से असहमति जताई। आज भी मेरे संस्थान में सैकड़ों विद्यार्थी हैं। इसलिए मैं आपकी बेचैनी, आपका गुस्सा और आपकी उम्मीदें तीनों को समझ सकता हूं। मेरी नजर में छात्र आंदोलन समाज की सबसे सच्ची आवाज होती है। उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता, उन्हें बस अपनी भविष्य की चिंता होती है, अपने अधिकारों की बात होती है और देश को बेहतर बनाने का सपना भी होता है। इसलिए मैं दिल से आपके साथ हूं। लेकिन एक बात और मैं आपसे बड़े भाई की तरह कहना चाहता हूं। जब आपके आंदोलन में बाहर के लोग घुसने लगते हैं, राजनीतिक अवसरवादी, हर आंदोलन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाले लोग या ऐसे तत्व जिनका मकसद आपका मुद्दा नहीं बल्कि अपना एजेंडा होता है, तब सावधान हो जाइए। शुरू में आपको लगेगा कि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे आपकी ताकत उतनी बढ़ेगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। बहुत बार वही लोग आपकी सबसे बड़ी ताकत को आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देते हैं। वो आपकी आवाज नहीं बनते,
वो आपकी आवाज का इस्तेमाल करने लगते हैं। वो आपके दर्द को महसूस करने नहीं आते, वो आपके दर्द पर अपनी राजनीति की इमारत खड़ी करने आते हैं। धीरे धीरे मुद्दा आपका नहीं रह जाता, कैमरे उनके हो जाते हैं, नारे उनके हो जाते हैं, मकसद उनका हो जाता है और शायद नुकसान आपका। आपकी सच्चाई पीछे छूट जाती है, आपकी लड़ाई आपकी ही रहनी चाहिए, उसे किसी और के एजेंडे का मंच मत बनने दीजिए। लोकतंत्र में सवाल पूछना आपका अधिकार है, प्रदर्शन करना आपका अधिकार है, अपनी बात मजबूती से कहना आपका अधिकार है, लेकिन उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी यह भी है कि आपकी आवाज पर किसी और का कब्जा ना हो। याद रखिए, छात्र किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी ईमानदारी, आपका आदर्शवाद ही आपकी असली ताकत है। उसे किसी के हाथ का औजार मत बनने दीजिए। मैं आपके साथ हूं, आज भी, कल भी। मैं चाहता हूं कि आप निडर होकर अपनी बात कहें, लेकिन अपनी शर्तों पर, अपने विवेक से, अपने आत्मसम्मान के साथ। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे और हमेशा सच के साथ खड़े रहने का साहस दे। नमस्ते, जय हिंद। ये तस्वीर है आपके स्कूल की, या क्या कहा जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। इसके बारे में हमें कुछ बताएं आप। जिस अभियान की मैं बात कर रहा था उसके बाद ये बनी है। जो अभियान थी वो तो सभी बच्चों को परीक्षाओं में ज़्यादा अच्छा करने के लिए छेड़ी गई, मगर फिर भी कुछ बच्चे फेल होते हैं, अलग होते हैं। तो हमने सोचा 25% भी फेल नहीं होने चाहिए, उनके लिए भी एक अवसर होनी चाहिए। तो एक अलग सा विद्यालय बनाया। टेकमुल, जो कि स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख है, उसका ये कैंपस है। यहाँ हर कुछ अलग है। पहली तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो किसी एग्ज़ाम के फर्स्ट डिवीज़न या मार्क्स पे नहीं, जो सिस्टम में फेल होते हैं उनको हम लेते हैं। जो लोग फेल हुए हैं जी, उन्हीं को एडमिशन दिया जाएगा, या उनकी प्रतिशत जो है वो ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी और फिर उनके लिए ये स्कूल अलग। अगर आपको 95% मार्क्स मिले हैं तो ये जरूरी नहीं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन यदि आप फेल हुए हैं 4-5 दफे तो वो एक अच्छा क्राइटेरिया बन जाता है आपकी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, बहुत खूब। किन्नौर के ट्राइबल गर्ल को लद्दाख के ट्राइबल हाउस का एक टूर दूंगा, ठीक है? ट्राइबल हाउस क्यों कह रहा हूँ, ये घर मिट्टी का बना है। हाँ, ये जो दीवारें हैं ये बिल्कुल मिट्टी के जैसे आपके वहाँ बनते होंगे, कूट कूट के मिट्टी से बना है हजारों सालों से। मगर हम बहुत बार पुराने तरीकों को, जैसे मिट्टी की दीवार, मिट्टी के घर है, उनको पुराना सोच के छोड़ देते हैं। ज़रूरत यह है कि जो पुराने में अच्छाई है उसको रखें और नया मॉडर्न हो तो मॉडर्न में जो अच्छाई है उसको लें, है ना? तो दोनों का एक मिश्रण भी तो बन सकता है, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। तो ये दीवारें उस पुराने तरीके से हैं, मगर फिर घर, कमरे वगैरह सब मॉडर्न हैं। आप अगर दिखाएं तो इसके अंदर फिर आप कोई भी मॉडर्न तरीके से बना सकते हैं। सीटिंग हो, सोफाज हो, डाइनिंग हो। यहाँ पर जैसे सीटिंग है, ये लो सीटिंग है, ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है, जो लद्दाख में जैसे लोग बैठना पसंद करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है हम बड़े कुर्सी पे बैठे हैं, इसका भी अपना मॉडर्नाइजेशन हो सकता है। एक तरफ मिट्टी के दीवारें हैं, मगर इस घर को तो गर्म भी रहना है ना सर्दियों में, तो हम यहाँ पर कोई बुखारी, कोई आग नहीं जलाते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये सोलर हीटिंग सिस्टम। ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये काली दीवार है, इसके अंदर पानी के बॉटल्स हैं। तो इससे जो सर्दियों में धूप आता है वो पूरा इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, जज्ब हो जाता है, और फिर वो गर्मी दिन की समात के रखता है और रात को फिर गर्मी देता है। तो इसलिए इस कमरे में +18 +20 तक रहता है। ये मॉडर्न है,
ये शीशा मॉडर्न है, ये वॉल्स मॉडर्न है, साइंस मॉडर्न है, मगर तरीका हमारे पूर्वजों का है। तो मिट्टी के घर में साइंस का इस्तेमाल करें तो आपके लिए एक बहुत अच्छा सा घर मिल सकता है। घर में बेडरूम हो, या हम एक मिसाल बना रहे हैं कि होटल हो, गेस्ट हाउस हो, तो वो दिल्ली की तरह ज़रूरी नहीं है, लद्दाख के मिट्टी से बन सकता है, मगर दिल्ली का कंफर्ट भी हो। जैसे ये अटैच्ड टॉयलेट वाला कमरा है, मगर इसका टॉयलेट बिल्कुल वो नहीं है जो आम होता है, फ्लश करके पानी से। तो ये रूम मॉडर्न भी हो सकता है, मगर दीवारें वही हैं जैसे मतलब हजारों साल पहले से लद्दाख में, किन्नौर में, लाहौल स्पीति में, तिब्बत में और दुनिया के बहुत हिस्सों में होता था। उसी को हम सेलिब्रेट करें। अगर होटल हो तो इस तरह के बेडरूम बन सकते हैं ना, बुरा नहीं लगता, बल्कि बहुतों को बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ का लोकल टच है, तो 5 स्टार की तरह वो देखते हैं ना, जिनको मतलब लोकल से प्यार है या इज्जत है। तो उसी तरह हम लोग सोचते हैं कि हमारे जो लोकल टॉयलेट्स हैं वो तो घर के बाहर दूर रखना होता है, उसमें से स्मेल आएगा, क्योंकि उसकी खूबियाँ बहुत है। उसमें से हमें फर्टिलाइजर मिलता है जो कि खेतों में जाए, पानी यूज नहीं होता है, क्योंकि पानी क्यों वेस्ट करें, जबकि मॉडर्न टॉयलेट दिखने में बड़े मॉडर्न है, मगर हर बार 5-10 लीटर पानी जाया करता है और वो हमारे काम भी नहीं आता है फिर मैन्योर बन के। अब लोकल टॉयलेट को मॉडर्न स्टाइल से बनाया। तो एक तरफ तो ये शावर वगैरह है ना, जैसा किसी भी बाथरूम में शावर हो वो सब हो सकता है, फिर सिंक हो, वो तो सब हमारे ट्रेडिशनल टॉयलेट में भी क्यों ना हम सारे फैसिलिटीज रखें। तो ये है हमारा टॉयलेट, जो नॉर्मली एक पिट होगा ना, जिसमें फिर 1 साल का जमा होगा, फिर उसको निकालना पड़ेगा। इसमें हम बकेट्स रखते हैं जो कि बंद करके रख दें तो वो खुद ही कंपोस्ट होके सड़ के मैन्योर बन जाएगा, खाद बन जाएगा। तो दिखने में बहुत मॉडर्न हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है बुरा ही दिखे। तो ये जैसा मॉडर्न टॉयलेट दिखता है वैसा ही है, बल्कि इसमें खाद तुरंत बनता है। जैसे जो मूत्र, मलमूत्र कहते हैं ना, यहाँ से पेशाब जाता है, यूरिन सेपरेटेड टॉयलेट है, तो आगे का जो है वो यूरिन को बाहर पाइप से ले जाता है। और ह्यूमन यूरिन, जो इंसान का पेशाब है, वो सबसे अच्छा एक तुरंत मिलने वाला खाद है। उसमें पानी मिलाएं 19 और यूरिन 1, तो बहुत अच्छा, आपको फिर खरीदना नहीं पड़ेगा ये यूरिया वगैरह वगैरह। टॉयलेट के साथ फ्लश करते हैं, बकेट्स बाल्टियां पानी के बहा देते हैं, वो नहीं करते हैं हम अपने पूर्वजों ने जो सिखाया है कि इसमें हम मिट्टी या बुरेदा डालते हैं, तो ऐसा ही है। इसमें जैसे पानी का फ्लश नहीं करेंगे, आप बुरेदे का फ्लश करेंगे। जब आप यूज करेंगे तो इस तरह से आप बुरेदा लगाएंगे, तो यकीन मानिएगा इस तरह से जब बुरेदे से आप ढक देंगे तो कोई स्मेल नहीं आएगा। और 1 हफ्ता 2 हफ्ता में जब ये भर जाएगा तो आप ये बकेट यहाँ से निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल के उसका ढक्कन लगा के उसको एक जगह पे, एक चैम्बर जहाँ गर्मी रहती है उसमें रख दीजिए, तो वो 6 महीने के बाद खाद का एक बकेट बन जाएगा। उस तरह से आप अपनी खेती भी कर सकते हैं, कहीं प्रदूषण भी नहीं है। ये जो पानी मल है ना, वो जमीन में जाके पानी को प्रदूषित करते हैं। तो यहाँ तो सब खेतों में जाके और भी फूल उगाते हैं। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, चाहे चंडीगढ़ में रह रहे हैं, वहाँ पे भी आप कंक्रीट की बिल्डिंग में रह रहे हैं, और अगर आप हिमाचल में आके भी कंक्रीट की बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो मतलब उसका है कि आपको ना कल्चर देखने को मिलेगा, ना ट्रेडिशन देखने को मिलेगा। तो मुझे खुद को भी सर ये लगता है कि जितने भी हमारे होम स्टेज अगर हम बनाते हैं, तो अगर जैसा आपने सर एक मतलब मिसाल के तौर पे अपना घर हमें टूर करवाया कि किस तरह से हम कल्चर और ट्रेडिशन दोनों को लेके हम एक जैसे आरामदायक एक बेडरूम बना सकते हैं, उसी तरह अगर हम सब भी क्यों ना कोशिश करें तो सर हम अपने कल्चर को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। सर आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि जो टूरिस्ट आते हैं, खासकर जो सुलझे हुए हैं, जिनको समझ है, वो दिल्ली या मुंबई या न्यूयॉर्क में जिस घर में रहते हैं वो देखने के लिए लद्दाख या लाहौल या किन्नौर नहीं आएंगे। वो यहाँ के स्थानीय संस्कृति, सभ्यता, घर, रहन सहन वो देखने आएंगे ना। और ख़ासकर मिट्टी के जो घर हैं वो तो उनके आंखों में तारे चमकते हैं। ख़ासकर अमेरिका में, मैं जब अमेरिका में गया था तो मैं पूछ रहा था कि यहाँ पर अमीर लोग किस में रहते हैं और गरीब लोग किस में रहते हैं, तो वो बोलने लगे अमीर लोग तो नहीं, जो अमीरों में अमीर हैं
वो मिट्टी के घरों में रहते हैं। यहाँ इतना उसको फैशनेबल माना जाता है कि मिट्टी के घर जिसपे बहुत हाथ का काम लगता है वो तो अमीर भी नहीं खरीद पाते हैं, अमीरों में अमीर। बाकी जो सबसे गरीब हैं वो सीमेंट के घरों में रहते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, हमें लाहौल, किन्नौर और लद्दाख में सीमेंट के घर बना के फिर गरीब क्यों बने, जब हमारा इतना अमीर परंपरा है, रिच ट्रेडिशन है, तो उसी को क्यों ना दिखाएं। तो ये एक क्या कहेंगे, मिथ है, एक भ्रम है कि टूरिस्ट को तो वो सीमेंट के घर पसंद आते होंगे। नहीं, टूरिस्ट को नयापन पसंद है, वो कुछ नया देखने आए हैं। उनके लिए आपका पुराना नया है। Yes, sir. आपका पुराना उनके लिए नया है, वो देखने आए हैं। बेशक आप पुराने में नयापन लाइए, जैसे हमने किया है। तो ये दीवारें बहुत उबड़ खाबड़ होती हैं, तो हमने बहुत स्मूथ इसे प्लेन बनाया है। और ठंडे होते हैं तो हमने सोलर हीटिंग से इसे गर्म बनाया है। तो अब कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, मगर टॉयलेट आपका 1 किलोमीटर दूर होता है, हम नहीं बैठ सकते, तो हमने अटैच बनाया है। फिर भी ये वही गुणवत्ता या क्वालिटी रखते हैं जो पुराने में है। इससे आपको मल मिलता है, फर्टिलाइजर मिलता है, पानी यूज नहीं होता है। इसको देखने तो कोई भी न्यूयॉर्क से आपके यहाँ आएगा। सर जैसे हम रहन सहन की बात कर रहे हैं, उसी तरह हमारा खान पान भी है सर। अब जैसे अगर हम लद्दाख के ट्रेडिशनल घर में रह के पिज्ज़ा खा रहे हैं तो सर वो तो कोई सेंस नहीं बनता ना सर। लोग जैसे अगर हम सत्तू संपा अगर हम परोसे उन्हें तो सर वो ज़्यादा मतलब उसको चाहेंगे और हमारे कल्चर ट्रेडिशनल फूड जो है उसके बारे में सर करीब से जानेंगे सर। और ये ज़्यादा पौष्टिक भी है। सत्तू तो एक तरह का सुपर फूड है जिसके पावर से हमारे ट्रेडर्स जो है यहाँ से स्पीति तक चल पड़ते थे। इंस्टेंट फूड है, 2 मिनट में आप उसका चाशुल बना के, खुलाक बना के खा सकते हैं। तो जादू ही है, इसे देखने के लिए लोग आएंगे। तो ये नहीं सोचिएगा कि हम जो खा रहे हैं वो क्या दिखाना, हम तो चावल खाएंगे वो दिखाएं। वो तो आप वही दे रहे हैं जो वो रोज खाते हैं, तो वो देखने के लिए, वो खाने के लिए यहाँ क्यों आए। बहुत अच्छा लगा। आप ठीक है, आप इस तरह से अपने माध्यम से अपने इलाके में कैसी उन्नति हो, कैसा विकास हो, उस पे असर डालें तो आपके यूट्यूबर होने का एक नया आयाम। यस सर, मैं भी यही चाहती हूँ कि जितने भी जैसे यूट्यूबर्स हैं अगर लद्दाख घूमने आते हैं सर, मैंने मोस्टली देखा है कि कुछ एक प्लेसेस हैं जो उसी को ही फोकस करते हैं, जैसे पैंगोंग है। तो मतलब सब पूरा क्राउड वहीं भागता है। जैसे अभी मैं रिसेंटली लिक्से गांव में गई थी सर, वहाँ पे जाके एक अलग एक्सपीरियंस मिला मुझे। लद्दाख का कल्चर, लोगों से बात करने का मौका मिला, वहाँ के मतलब परंपरा के बारे में जानने का मौका मिला। तो ये चीज़ हमें खुद जानना बहुत ज़रूरी है सर। बिल्कुल। और ख़ास कर मैं कहूँगा लोग पांगोंग में जाते हैं, हर कोई पांगोंग में जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक फिल्म बनी थी 3 इडियट्स। और 3 इडियट्स क्या सिखाता है? भेड़ चाल में मत चलो, अपना अलग रास्ता निकालो। और भेड़ चाल में वही देखने जाते हैं। तो क्या सीखा 3 इडियट्स से? सर वही बात है सर। ये भी एक सीखने की बात है कि हम भेड़ चाल नहीं करने का ही एक भेड़ चाल बना बैठे। तो ये किचन एरिया है, तो हम कह रहे हैं घर पारंपरिक है, मगर उसमें जो जीवन शैली है आप आधुनिक भी रख सकते हैं। आपका फ्रिज हो सकता है, आपका ये आइलैंड टेबल है जो शायद दुनिया में और जगहों पे होता है, वो हो सकता है। और अपने परंपरा को मिलाते हुए, जैसे हम चांसा में कोई अलग ना रख के सब लोग मिल के खाना बनाते हैं, उसी को थोड़ा आधुनिकीकरण करके यहाँ सब लोग सब्जियाँ मिल के काट सकते हैं। यहाँ पे आप बर्तन, थाली, सब्जी धो सकते हैं और फिर बाद में सब लोग मिल के इन कुर्सियों पे बैठ के खा सकते हैं। इधर पका सकती हैं, तो जो पकाने वाली हैं उनको किसी और कमरे में बंद होने की ज़रूरत नहीं होगी। यहीं बना रहे हैं, सब लोग यहीं बैठे हैं, तो उसके साथ मिल के खा सकते हैं उधर भी। तो इस तरह से मतलब जो हमारा पुराना स्पिरिट है उसको नए में भी ला सकते हैं कि हम चांसा में सब मिल के बनाते हैं, मिल के खाते हैं, कोई कुक, कोई खाने वाला अलग ना होके। तो उस तरह से ये किचन बनाया है जो कि ट्रेडिशनल भी है और बहुत मॉडर्न भी है। तो जैसे मॉडर्न कहें तो गैस स्टोव मॉडर्न है, जैसे फैसिलिटीज जो हैं वो मॉडर्न है। तो जितना चाहें आप मॉडर्न बनाना चाहें बनाइए, मगर इसका मतलब नहीं है कि पूरा जिसे कहते हैं ना ट्रांसप्लांट करें, यहाँ का पौधा वहाँ लगा दें, वहाँ का यहाँ लगा दें। अपने में ही रहते हुए उसे आधुनिक बना सकते। यस सर, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि सर ने मुझे पूरा अपने घर का टूर कराया जो कि बेहद ही सुंदर है और साथ में ट्रेडिशन और जो मॉडर्निटी है दोनों मेंटेन किया है और बहुत ही खूबसूरत घर है सर। धन्यवाद। ये बनाया है इसीलिए है कि तो और गांव में भी इस तरह से थोड़ा एक मिसाल करके देखने का लोगों में होता है ना। कहते हैं यहाँ पर हम
चीज़ें लमनियान चीचो आल्तोस, हाँ, सुन के नहीं देख के करो, जो कुछ नया दिखने को, सीइंग इज बिलीविंग कहते हैं ना, तो इसलिए किसी को एक बनाना पड़ेगा, उसके बाद औरों के लिए आसान होता है। एप्पल, सेब और खुबानी लगा रहे हैं। हाँ, अभी ये गरी नया, ये पूरा नया है, मतलब 4 साल पहले अगर आप आते तो ये मांस जैसा था। अभी भी थोड़ा मांस ही लग रहा है, कोई खास वो नहीं है, मगर फिर भी यहाँ कुछ हम सेब लगा रहे हैं। वहाँ एक सेब का बगीचा है, आप देख रहे हैं, छोटे बोने सेब, डॉर्फ, हाई डेंसिटी एप्पल, ग्रीन हाउस है उधर, हमारा एकेडमिक एडमिन बिल्डिंग बन रहा है। वो इस तरफ से देखें तो बहुत ट्रेडिशनल है, देख रहे हैं, पुराने पैलेस की तरह है, छोटे छोटे खिड़कियाँ। वो उत्तर का दिशा है क्योंकि वहाँ से धूप नहीं आता, मगर उस तरफ से देखें तो शीशा ही शीशा है क्योंकि साउथ है वो, दक्षिण दिशा, तो वहाँ से धूप आए तो उस बिल्डिंग में भी कोई गर्मी का कुछ भी जलाया नहीं जाएगा, सिर्फ धूप से वो चलेगी, उस तरह का। सर फिर यहाँ पर पानी का क्या सोर्स है सर? हाँ, यहाँ पानी की बहुत कमी है। अभी तो हम बोरवेल से कर रहे हैं, मगर आगे हमारा उम्मीद है कि हम बर्फ़ के पानी को सर्दियों में जमाएं यहाँ पर और फिर उससे हिमस्तूप या आइस स्तूपा से वो कर पाएँ। मगर अभी गांव में थोड़ा वो सिस्टम नहीं बना है कि कैसे हम पानी सर्दियों में लें और उसको, तो आगे जाके उस तरह से इसके पानी का प्रबंध होगा। धन्यवाद सर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं सर से मिलूंगी, बट आज मैं सर से मिली तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं आपसे क्यों मिलना चाहता था, मैं ये सोचता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया, खासकर यूट्यूब, हमारे बच्चों के टाइम को जैसे एब्जॉर्ब कर लेता है। लोग सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं और दूसरी तरफ सोशल मीडिया और यूट्यूब वगैरह बहुत काम के भी हो सकते हैं, तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट कम और नेगेटिव ज़्यादा फैल रहा है। अगर हम देखें गौर से तो यूट्यूब को यूज़ करके हम पहाड़ों में जो छोटे छोटे कम्युनिटीज़ हैं, जैसे आपके किन्नौर में ऐसे भाषाएं हैं जो 2000 लोग बोलते हैं, 5000 लोग बोलते हैं या 15-20 हज़ार, और जो भाषाएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं उनको हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो मैं ये चाहता था कि हिमाचल में जो लद्दाख के पास ही है और लद्दाख में भी ऐसे समुदायों से, ऐसे गांव से जहाँ की भाषाएं एंडेंजर्ड कहते हैं ना, एंडेंजर्ड है, आप तो बोल लेते हैं मगर आपके अगले जनरेशन के लोग, बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं, तो उसमें अगर हमारे यूट्यूबर्स कंटेंट बनाएं, हाँ उसमें कंटेंट बनाएं तो आपके व्यूवर्स उतने नहीं होंगे क्योंकि पॉपुलेशन कम है, तो उसके लिए मैं एक ऐसा फाउंडेशन बनाना चाहता था जिससे कि ऐसे यूट्यूबर्स को सपोर्ट मिले, हाँ, फाइनेंशियल हो या ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, हम ट्रेन करें अपने अपने भाषा में, अपने अपने इलाकों से, और फिर वो अपनी भाषा में बनाएं जिसको कि बड़े बूढ़े भी देखें तो वो खुश हों कि इस भाषा में आजकल कोई नहीं बोलता है मगर ये यंग गर्ल अपनी भाषा में बना रहे, और छोटों को वो दिखा सकें ये है हमारी भाषा, इस तरह से भाषाएं बच पाएं। तो मैं चाहता हूं किन्नौर, लाहौल स्पीति जो ट्राइबल बेल्ट है, अगर हम यूट्यूबर्स का एक क्या कहेंगे एसोसिएशन बनाएं और फिर मीनिंगफुल कंटेंट, कल्चरल, लिंग्विस्टिक प्रमोशन के लिए बनाएं, और लद्दाख में भी ऐसे बहुत छोटे छोटे गांव हैं, समुदाय हैं, उनके साथ भी ऐसा वर्कशॉप, ऐसा एक प्रोजेक्ट कैसा रहेगा आपके ख्याल से? सर बहुत बढ़िया बात की आपने और बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव मैं अब मतलब देख रही हूँ कि यहाँ पे होने वाला है। जैसे आप बता रहे हैं कि अपने अपने लैंग्वेज जो हमारी बहुत ही इंडेंजर्ड है, जैसे हम किन्नौर की बात कर ले, काफ़ी कम बच्चे हैं, काफ़ी कम लोग हैं जो इवन आजकल की जो जनरेशन है बहुत कम अपनी बोली में बात करते हैं, हिंदी इंग्लिश ज़्यादा चलती है। तो अगर हम ऐसा कुछ करें कि साथ में मिलकर हम सब अगर एक कम्युनिटी बनाएं और अपनी लैंग्वेज में अगर हम वीडियोस बनाएं और हमारे बूढ़े देख सकें, बच्चे देख सकें, तो वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा सर। हम यहाँ लद्दाख में बोलते हैं कि आप ABC सीखिए, हाँ जी सर, आप हिंदी के काखाप सीखिए मगर अपनी भाषा को ना भूलिए, हाँ? तो वो स्पिरिट में हम अपनी भाषाओं को अगर जिंदा रख सकें, और ये तो हुई बात लद्दाख और किन्नौर जो कि हमारे सीमा पर है, बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, तो ऐसे स्मॉल ट्राइब्स, स्मॉल कम्युनिटीज़ कैसे अपने भाषा को बढ़ाएं। वैसे ही आपके जो दर्शक हैं वो भी बहुत ऐसे जगहों से होंगे, नॉर्थ ईस्ट से होंगे या भारत के जैसे मध्य भारत से हैं, तो वहाँ भी बहुत से ट्राइब्स हैं, बहुत से भाषाएं हैं जो लुप्त हो रही हैं, मर रही हैं। वो इस एग्जाम्पल को देख के अपने अपने जगह में कर सकते हैं, तो हम शुरू करके देखते हैं, फिर इसका मिसाल शायद और छोटे समुदायों में भी फैल सकता है।
जी सर, हम पूरी कोशिश करेंगे जितने भी किन्नौर के यूट्यूबर्स हैं, सबसे पहले तो ये है कि हमें करना होगा, हमें साथ में मिलके एक कम्युनिटी बनानी होगी। जैसे सर ने बताया, वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, हम अपनी स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और अपनी लैंग्वेज में ही अगर हम वीडियोस बनाएं तो वो बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव होगा हमारी लैंग्वेज को बचाने के लिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक, जैसा मैं शुरू में भी बोल रहा था, एक समस्या ये आएगी जब आप एक यूट्यूबर हैं और इंग्लिश या हिंदी में बनाते हैं तो व्यूअर्स बहुत हैं, तो इनकम भी थोड़ा डिसेंट आएगा। अब आप अपने छोटी भाषाओं में बनाएं तो उतना इनकम नहीं होगा, व्यूअर्स भी नहीं होंगे। तो इसके लिए ये फाउंडेशन ना, जैसे कलरफुल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड बोलिए या कुछ भी, उस तरह का एक फाउंडेशन हो, फिर वो उन यूट्यूबर्स को सपोर्ट कर सके थोड़ा सा, उसमें उनकी इनकम बढ़ाकर। हाँ, तो उसमें आप में से जो किसी छोटे समुदाय से नहीं हो, किसी ट्राइबल लुप्त होते हुए भाषा बोलने वाले नहीं हो, मगर आपके पास साधन हो, तो ऐसे फाउंडेशंस में आप सपोर्ट करके लद्दाख से लेके नॉर्थ ईस्ट तक हेल्प कर सकते हैं। ऐसे जो दुनिया में रंग बिरंगी संस्कृति हैं, भाषाएं हैं, उनको ज़िंदा रखने में। तो सबसे पहला तो मैं खुद उसमें योगदान करना चाहूँगा इस फाउंडेशन में, और मुझे उम्मीद है कि बहुत लोग ऐसे एक्सरसाइज को, ऐसे एक अभियान को साथ देना चाहेंगे, मदद करना चाहेंगे। आप कदम बढ़ाइए तो मदद करने वाले बहुत आएंगे। हाँ जी सर। तो हमारी पूरी उम्मीद है आप ऐसा कुछ अपने एरिया में करें। सर ज़रूर हम कोशिश करेंगे, हम सब यूट्यूबर्स जितने भी हैं कि मतलब अपनी भाषा में वीडियोस बनाएं, या फिर अगर ऐसा होता है कि हम अपनी भाषा में वीडियोस बनाते तो काफ़ी कम लोग व्यूज़, मतलब जैसा आपने बताया, अगर हम अपनी वीडियोस में सबटाइटल्स के ज़रिए समझाने की कोशिश करें जनता को, तो ज़रूर वो और आगे, मतलब हमारे को और ज़्यादा आगे बढ़ावा मिलेगा। अगर हिंदी इंग्लिश में आप सबटाइटल रखते हैं तो दुनिया भी समझ सकते हैं, मगर भाषा अपनी हो तो बड़े बूढ़े छोटे सब समझ सकते हैं। और फिर आपके कंटेंट भी गांव के किसी मेले के बारे में, किसी मंदिर के बारे में, किसी बहुत ऐतिहासिक कोई रास्ता हो, और फिर धीरे धीरे आपका एक समुदाय बने। अगर यूट्यूबर्स का एक समुदाय बने तो आप एक दूसरे के गांव में एक दूसरे की संस्कृति को आपस में शेयर कर सकते हैं। हमें नहीं ज़रूरत है कि सिर्फ लंदन या न्यूयॉर्क को सुनाएं या उनका ही देखें, हम अपने लोकल कल्चरल प्रमोशन बहुत कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी सर, ये हमारा एक शुरुआत हुआ। थैंक यू सो मच सर। हम साथ में कोशिश करेंगे, और सर ने मतलब इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, तो सर मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने मतलब एक विजन होता है, एक मतलब किसी भी काम करने के पीछे। मुझे खुद को लगता था कि यूट्यूब के ज़रिए किस तरह से मैं अपनी संस्कृति को थोड़ा मतलब डॉक्यूमेंट कर सकूँ, बचा सकूँ, पर सर ने आज मुझे एक विजन दिया है कि किस तरह से हम मतलब हमारा इफेक्ट भी नहीं होगा और हम मतलब और आगे अच्छा कर सकते हैं, हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं सर। तो धन्यवाद सर, बहुत बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई सर। थैंक यू सो मच सर।